अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टार्ट कर रहे हैं हमने डीप ड्रीम में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैंने थोड़ा सा देखा था, इसको करते हैं इंशाल्लाह मिलके। Deep dream is an artistic image modification technique that uses the representation learned by the convolution neural networks. It was first released by Google in summer 2015 as an implementation written using the Caffe Deep Learning library. This was several months before the first public release of TensorFlow. It quickly became an internet sensation thanks to the trippy pictures it could generate. For example, 8.3 full algorithmic pareidolia artifacts, bird feathers, and dog eyes, a byproduct of the fact that the deep dream convent was trained on ImageNet. तो एक्चुअली जो आपका इमेज नेट है 1 मिलियन पिक्चर्स का जो बना हुआ है इमेज नेट, उसके ऊपर उसको ट्रेन किया गया है। वेयर डॉग ब्रीड्स एंड बर्ड स्पीशीज आर वास्टली ओवर रिप्रेजेंटेड। तो आपके पास जो इमेज नेट के अंदर ना बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं जानवरों की और परिंदों की, और वो बहुत ज़्यादा हैं इमेज नेट के अंदर। तो डीप ड्रीम को उसके ऊपर ट्रेन किया गया है। The deep dream algorithm is almost identical to the convent filter visualization technique introduced in chapter 5. हमने chapter 5 में जो convents देखे थे ना कि convent convolution 2D की layers थी 1 2 3 4, फिर max pool की थी बीच में। तो ये बिल्कुल उस तरह वही वही तरीके पे काम करता है, लेकिन consisting of running a convent in reverse, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में हम इसको रन करते हैं। Doing the gradient accent on the input to the convent in order to maximize the activation of a specific filter in an upper layer of the convent. तो आपको पता है कि कन्वोल्यूशन 2D के अंदर या नॉर्मली जो है आपकी डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं, लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर जो है लॉस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, यानी लॉस को बढ़ाना है। इसमें ग्रेडियंट एसेंट यूज होगा, ग्रेडियंट डिसेंट यूज नहीं होगा। Deep Dream uses this same idea with a few simple differences. With Deep Dream you can try maximize the activation of entire layers rather than that of a specific filter, thus mixing together visualization of large number of features at once. तो हम क्या करते थे कन्वोल्यूशन 2D के अंदर, हम किसी एक फीचर को ना, एक लेयर जो है ना, एक लेयर जो है वो किसी एक फीचर को ना वो टारगेट करती थी। नहीं, लेयर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक फिल्टर, एक लेयर में जो एक फिल्टर है ना वो किसी एक फीचर को वो टारगेट करता था। ठीक है, we try to maximize the activation of entire layers rather than of a specific filter। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम पूरी जो लेयर्स हैं सारी की सारी उसकी एक्टिवेशंस को, उसकी जो फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करेंगे, दस मिक्सिंग टुगेदर विजुअलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स। तो हमारे पास बहुत सारे जो फीचर्स आएंगे, हर एक्टिवेशन में से एक अलग फीचर आएगा, फिर हम सब फीचर्स को मिक्स करेंगे। You start not from blank, slightly noisy input, but rather from an existing image. Thus, the resulting effects latch on the pre-existing visual patterns, distorting elements of the image in a somewhat artistic fashion. हम किसी इमेज को इनपुट करेंगे, ठीक है, एक इनपुट इमेज देंगे, उस इमेज के ऊपर हम जो है जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास फीचर्स होंगे ना इमेज नेट के, उन फीचर्स को हम उसके ऊपर एम्बोस कर देंगे। काइंड ऑफ एम्बोस जो है ना, हम अपनी एग्जिस्टिंग इमेज के ऊपर उसको एम्बोस कर देंगे।
These input images the input images are processed at different scales called octaves, which improves the quality of visualizations. So let's make some deep dreams. Implementing deep dreams in Keras. You'll start from convent pre-trained ImageNet. In Keras, many such convents are available: VGG 16, 19, Exception, ResNet, and so on. You can implement deep learning, deep dream with any of them, but your convent of choice will naturally affect your visualization. तो आपका जो convent जो भी इसमें से select करेंगे, उसकी जो visualization है या उसकी जो result है वो different तरीके से आएगा. ठीक है, हर एक का अलग से रिजल्ट आएगा. Because different convent architectures result in different learned features. The convent based used in the original Deep Dream release was an inception model. डीप ड्रीम के ऊपर जो पहला एक्सपेरिमेंट जो डीप ड्रीम का किया गया था वो इंसेप्शन के ऊपर किया गया था. यानी कि यहाँ पे एक इंसेप्शन भी होता है ना, VG16 एक्सेप्शन, इंसेप्शन, रेसनेट, इस तरीके से इंसेप्शन V3 जो है उसके ऊपर किया गया था. एंड in practice, Inception is known to produce nice looking deep dreams. So you will use the Inception V3 model that comes with the Keras. आपने इसको import किया, उसके बाद Keras को क्या किया है, from Keras import backend SK और k dot set learning phase equal to 0. इसका मतलब है you want be training a model, so this command disables all training specific operation. यानी कि ट्रेनिंग जो है ना, हम फर्दर ट्रेनिंग नहीं करेंगे. ठीक है, ट्रेनिंग ऑलरेडी हुई है, यानी कि जो इंसेप्शन की ट्रेनिंग है वो हुई है, तो उसको हम ज़ीरो कर देंगे. मॉडल इज इंसेप्शन V3 डॉट इंसेप्शन V3 वेट्स हम इमेज नेट के लोड करेंगे और इंक्लूड टॉप इज इक्वल टू फॉल्स. जो हमारा टॉप लेयर है जो कि कन्वोल्यूशनल बेस है उसको हम डिटैच कर देंगे. ठीक है, build the inception V3 network without its convolution base. The model will be loaded with the pre-trained image net weights. तो ये आपके weights लोड हो गए और ये आपने उसकी जो convolution base थी, जो टॉप लेयर थी, वो हटा दी. तो हम इसको साथ साथ करते चले जाते हैं ताकि हमारा ये प्रैक्टिस भी होती जाए. Next, you will compute the loss, the quantity you will seek to maximize during the gradient ascent process. अब आप देख रहे हैं कि हम जो पहले करते थे, हम क्या करते थे, मिनिमाइज करते थे लॉस को, लेकिन अब हम यहाँ करेंगे मैक्सिमाइज, उसको बढ़ाना है लॉस को. In chapter 5, for filter visualization, you try to maximize the value of a specific filter in a specific layer. Here you will simultaneously maximize the activation of all filters in the number of layers. अब इसमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक चीज़ तो हमने क्या करना है कि लॉस को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, और यानी कि उल्ट प्रोसेस है, ग्रेडियंट एसेंट होगा. दूसरा क्या है कि हमने क्या करना है, क्योंकि हम चैप्टर 5 में क्या करते थे, हम एक फ़िल्टर लगाते थे ना, उस फ़िल्टर का ये काम होता था कि वो फ़िल्टर हम जिस एक लेयर पे अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो फ़िल्टर क्या करता था, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को वहाँ से फाइंड आउट कर लेता था. मिसाल के तौर पे 32 हमारे पास न्यूरॉन है, 32 न्यूरॉन्स के ऊपर हमने एक फ़िल्टर लगाया है, जैसे कि 100
001 010 इस तरीके से। अब ये जो एक स्पेसिफिक फिल्टर है ना, वो एक फीचर को आउटपुट करता है, ठीक है। वो एक फीचर को आउटपुट करता था किसी भी यानी 32 फिल्टर्स में से। हो सकता है एक फिल्टर वो उसको हो सकता है एक जो आपका न्यूरॉन है वो उसको आउटपुट कर रहा हो सकता है 2 या 3 न्यूरॉन आउटपुट कर रहे हो। डिपेंड करता है आपकी इमेज के अंदर जो है वो पैटर्न जो है जिसको वो फिल्टर टारगेट करेगा, वो पैटर्न कितनी दफ़ा आया है। तो आपके मिसाल के तौर पे वो 2 या 3 जगह पे आया है, तो वो उसको आपके फिल्टर आउटपुट कर देगा उसको, उस पैटर्न को, उस जो एक इमेज का एक पैटर्न होगा या एक पिक्सल्स का एक सर्टेन पैटर्न होगा, या एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या एक वर्टिकल लाइन होगी या एक डायगोनल लाइन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, here you will simultaneously maximize the activation of all filters, ठीक है। इसमें सब के सब फिल्टर्स की जो एक्टिवेशंस हैं उसको एट द सेम टाइम हमने मैक्सिमाइज करना है इन अ नंबर ऑफ लेयर्स, और सारी लेयर्स में करना है। Specifically, you will maximize a weighted sum of L2 norm of activations of a set of high-level layers. The exact set of layers you choose as well as their contribution to the final loss has a major influence on the visuals you will be able to produce. तो आप की जो लेयर्स चूज कर रहे हैं, ठीक है, और उन लेयर्स की वजह से जो चेंज आ रहा है लॉस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। जो ये दो चीज़ें जो हैं, एक तो जो हम लेयर्स चूज करेंगे, मिसाल है लेयर वन नंबर 1 है, लेयर 2 है या लेयर 3 है, जो भी है, और उस लेयर्स के अंदर जो उस लेयर को की वजह से एक पर्टिकुलर हमारे पास लॉस फंक्शन में चेंज आ रहा है, लॉस फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे विजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, उसी वजह से हमारे विजुअल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, जो फाइनल पिक्चर बन के आएगी। सो यू वांट टू मेक दीज पैरामीटर्स इजीली कॉन्फ़िगरेबल। दैट मीन्स आपने जो नंबर ऑफ लेयर चूज करनी है वो भी कॉन्फ़िगरेबल होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, मिसाल के तौर पर उसको वेटेज देते हैं, इस लेयर को आप एक वेटेज देते हैं, तो वो भी कॉन्फ़िगरेबल होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझाऊँ। So you want to make these parameters easily be configurable. Lower layer result in geometric patterns, ठीक है। जो आपके लेयर यानी कि शुरू की लेयर्स हैं वो आपके ज्योमेट्रिक शेप्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, ठीक है, कर्व टाइप, इस तरह उसको जो है टारगेट करती है। Whereas higher layers result in visuals in which you can recognize some classes from the ImageNet. जो आपको पता है कि जो हायर लेयर है ना, वो ज़्यादातर आपकी जो है ना स्पेसिफिक फीचर्स रिलेटेड टू डिफरेंट क्लासेस उनको टारगेट करते हैं, जैसे कि आँख है बिल्ली की, या इस तरीके से हमने पहले पढ़ा है, या उसकी मूंछें हैं या उसका नाक है। तो जो आगे की लेयर्स हैं वो एक स्पेसिफिक फीचर्स को टारगेट करते हैं। तो आपकी जो हायर लेयर हैं तो उसी तरीके से आपके इमेज नेट में से जो क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, परिंदों की हैं, जानवरों की हैं, एट्सेट्रा, उसमें से जो है वो आपके जो पैटर्न्स हैं या विजुअल्स हैं वो उनको ज़्यादातर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम समवेट आर्बिट्ररी कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्विंग 4 लेयर्स। तो हम 4 लेयर से स्टार्ट करेंगे, बट यू विल डेफिनेटली वांट टू एक्सप्लोर मैनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस लेटर। तो सबसे पहले क्या किया है कि हमने 4 लेयर्स ले लिए हैं, ठीक है, और उनको वेटेज दिया है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेबल हमने रखने हैं, ठीक है। तो एक तो हम यहाँ पे और लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। हम लेयर्स देखें कैसे, हम जब इमेज नेट को यहाँ पे लोड करते हैं, मॉडल डॉट समरी करके देखते हैं, तो हमारे पास सारी लेयर्स की डिटेल आ जाती है, उसके नाम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम फिर वहाँ से खुद से उनके नाम देख के ये 1 2 3 4 5 ये 5 लेयर्स हमने सेलेक्ट कर ली खुद से, और उनको हमने एक वेटेज दे दी है। इसको हमने 0.2 दे दिए, 3 दे दिए, 2 दे दिए, 1.5। ये कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी मैपिंग लेयर्स लेयर नेम्स टू अ कोफिशिएंट क्वांटिफाइंग हाउ मच लेयर्स एक्टिवेशन कंट्रीब्यूट्स टू द लॉस। मतलब यही बात कि आपकी लेयर कितना कंट्रीब्यूट करेगी उस लॉस के लिए। अब लेयर ये वाली 2 जो है
ये 0.2 फैक्टर है इसका, ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करेगी। 3 जो है वो ज़्यादा करेगी, ठीक है, और 4 जो है वो थोड़ा सा कम करेगी, एटसेट्रा। तो अभी हमने सर ये ये पढ़ा। वैल्यूज हम खुद देंगे? ये वैल्यूज आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे आप एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, आपको आपको आउटपुट पे क्या राइट। मिलता है, ठीक है। Note that the layers names are hard coded in the built-in assumption v3 application. You can list all the layer names by using the name model.summary। model summary करेंगे तो आपके पास सारा और लेयर के नाम आ जाते हैं, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप फर्ज किया किसी जानवरों की पिक्चर उसके अंदर एम्बोस करना चाहते हैं अपनी इनपुट पिक्चर के ऊपर, तो आप जो है ना अपर जो हायर लेयर्स हैं ना उनको ज़्यादा वेटेज देंगे, ठीक है, ताकि उस जानवरों की आंखें, उस जानवरों के कान शान या उसकी टांगें ज़्यादा आएँ, ठीक है। और अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप्स को करना चाहते हैं तो अर्लियर जो लेयर्स हैं ना उनको आप हाई वेटेज देंगे। तो ये यहाँ इसके मुताबिक जो है ना ये। नाउ लेट्स डिफाइन अ टेंसर दैट कंटेन्स द लॉस, the weighted sum of L2 norm of the activations of the layers in the listing। तो listing 8.9, तो आपकी जो ये है, जो लेयर्स हैं, ठीक है, इनके इनके जो ये लॉस फंक्शन को अफेक्ट करेंगी यानी इंडिविजुअली, ठीक है, वो क्या चीज़ होगी, वो क्या चीज़ होगी, वो क्या फार्मूला होगा जिससे हम पता चलेगा कि ये जो है ये लेयर कितना लॉस फंक्शन को इंक्रीज कर रही है, कितना लॉस फंक्शन के ऊपर इफेक्ट कर रही है। वो चीज़ जो है आपकी वो है वेटेड सम ऑफ द L2 नॉर्म ऑफ द एक्टिवेशंस ऑफ द लेयर्स इन लिस्टिंग 8.9। आपका ये L2 नॉर्म जो है ये स्टैटिस्टिकल टर्म है, तो उसकी जो है एक्टिवेशंस की जो L2 नॉर्म फंक्शन है वो जो है हमारे पास उसका वेटेड सम लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो ये चीज़ करेंगे। तो हमारे पास ये लेयर कंट्रीब्यूशंस हैं, ये आपकी वेटेज दी है लेयर, हर लेयर को जितनी वेटेज दी है। उसके बाद यहाँ पे आगे लेयर इज इक्वल टू लेयर डिक्शनरी। लेयर डिक्शनरी क्या है, क्रिएट्स अ डिक्शनरी ऑफ दैट मैप्स द नेम्स ऑफ द लेयर टू लेयर इंस्टेंसेस। तो एक तो हो गया सिर्फ नाम हो गया लेयर, ये हमने सिर्फ नाम एटसेट्रा कुछ भी रख सकते, मिसाल मैं एक दे रहा हूँ, ये तो एक सिर्फ नाम रखा है ना। अब हम इन्हें इन नामों को जो है उसके एक्चुअल लेयर के साथ मैप कर रहे हैं, ठीक है, डिक्शनरी बना रहे हैं, डिक्शनरी की वैल्यू, ये की और ये इसकी वैल्यू। तो डिक्शनरी डिक्शनरी ठीक है, लेयर डॉट नेम, मिसाल के तौर पर लेयर डॉट नेम आएगा, फिर उस लेयर नंबर आएगा फॉर लेयर इन मॉडल डॉट लेयर्स। तो आपके पास ये सारी की सारी जो लेयर्स की ना ये सारी एक डिक्शनरी बन गई, ठीक है। अभी हम इसको करके देखते हैं। तो हमारे पास इंस्टेंस कनेक्ट हो गया होगा, इसको ले जाते हैं उधर। सर ये डिक्शनरी क्यों बना रहे हैं, मतलब इसका क्या लॉजिक है? मुझे नहीं पता, मैं पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये इंसेप्शन में ये लेयर्स के नाम हैं मिक्स 2, मिक्स 3, मिक्स 4। मैंने मॉडल डॉट समरी किया तो नाम सामने आ गए। हाँ ये आगे होंगे ना, लेकिन इसमें बहुत सारे होंगे, और सिर्फ यही नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे और भी होंगे। उसने सिर्फ ये चंद एक लिए हैं, 4 लिए हैं सिर्फ, तो और बहुत ज़्यादा होंगे, ये देखते हैं अभी करके। वो टेंसर फ्लो ऐड करना है केरस से पहले। ये देखें, अब ये नाम बहुत सारे आपके पास, उसने कौन सा लिए, मिक्स 6 है, ठीक है। ये बहुत बड़ा है ना,
ये मिक्स 0 है, ये इसमें कॉन्केटिनेट किया ना, ऊपर सब जो आ रही हैं इसमें इनकी आउटपुट को जो है ना फिर यहाँ पे आके कॉन्केटिनेट किया है। उसके बाद फिर ये मिक्स 1 होगा जहाँ पे फर्दर कॉन्केटिनेशन हो रही होगी। ये मिक्स 2 है, ये इनकी एक्टिवेशंस है ना, एक्टिवेशन 19, 21, 24, 25, यहाँ इनकी एक्टिवेशंस को यहाँ पे कॉन्केटिनेट किया, एक आपकी आउटपुट आएगी इनसे, ये आपकी दूसरी आउटपुट होगी, फिर इस तरीके से तीसरी, चौथी, पांचवी, ये इस तरीके चल रहा होगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हो रही होगी, तो उसको इसने वो किया है टारगेट। ठीक है, ये उसके बाद ये हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है अब ये देखते हैं क्या साइंस है इधर। यहाँ पे आपके पास ये एक डिक्शनरी बन गई। ठीक है, डिक्शनरी बना के देखते हैं उसको पहले। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें लेयर, ये तो ये एक डिक्शनरी बन गई आपकी पूरी की पूरी, उसके नाम और उसके जो है ये एक उसकी जो भी है ऑब्जेक्ट लोकेशन जो है, जो उसकी मेमोरी में जहाँ पे लोकेशन के साथ उसकी एक मैपिंग बन गई, ये नाम है और साथ उसकी वैल्यू, की और वैल्यू। तो ये आपकी पूरी डिक्शनरी बन गई, लेकिन हमने इसमें यूज़ कौन से किए हुए हैं, वो सिर्फ यही यूज़ किए हुए हैं जो कि कॉन्केटिनेट हो रहे हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, ये उसने यूज़ किए हैं उसमें। तो ये मिक्स 2 3 4 5 ये यूज़ किए हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या हो रहा है जी, लॉस इज इक्वल टू के डॉट वेरिएबल 0। अब हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो मेरे ख्याल में एक फ्लोट पॉइंट, सिर्फ उसको 0 उसकी वैल्यू दी है इनिशियली लॉस को। तो के जो है आपका ये क्या है, के हमने क्या लिखा, के डॉट से अब इंपोर्ट कैरेस, इंपोर्ट कैरेस इंपोर्टेड, इंपोर्ट बैकएंड एज के। तो ये आपका एक इंस्टेंस के का इंस्टेंस है कैरेस का। तो के डॉट वेरिएबल 0, अच्छा, और फॉर लेयर नेम्स इन लेयर कंट्रीब्यूशंस, आपके जो लेयर अंडरस्कोर नेम्स इन लेयर कंट्रीब्यूशन, अब लेयर कंट्रीब्यूशन आपके पास कितनी है, वो जो ऊपर हमने डिक्शनरी बनाई थी ये वाली। ठीक है, मिक्स 2 3 4 5, इसको लुकअप करके और कोफिशिएंट इज इक्वल टू लेयर कंट्रीब्यूशंस लेयर नेम। तो आपके पास जो उसकी कंट्रीब्यूशन है मिसाल 0.2 है, तो वो 0.2 आ गई यहाँ पे इसके अंदर कोफिशिएंट के अंदर, जो उसको हमने एक वेटेज दी है। और एक्टिवेशन क्या होगी, एक्टिवेशन जो है आपकी लेयर डिक्ट के अंदर जो है, लेयर डिक्ट के अंदर उसमें आप लेयर नेम लुकअप करेंगे और उसकी आउटपुट, तो वो सॉर्ट ऑफ ये जो है ना आपका जो ये चीज़ है ये वाला, ये उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये उसके अंदर आएगी यहाँ पे लेयर नेम डॉट आउटपुट, उसकी आउटपुट। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, फिजिकली भी देख सकते हैं। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पे लेयर डिक्ट मिक्स्ड 1 डॉट आउटपुट, यहाँ इसकी क्या है, ये कह रहा है कि इसकी ये आउटपुट है, इसकी नन नन नन, और इसकी ये चैनल
मतलब इस तरह चैनल 228 इस तरीके से। ये इसकी जो है हमें वो शेप जो है ना वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। इसमें मतलब इसका जो वेटेज है वो यहाँ आ गया, इस लेयर का कितना वेटेज था वो 0.2 था, ठीक है। और इसका जो आपकी आउटपुट है लेयर की वो यहाँ आ गई इसके अंदर। ठीक है जी। और देन आगे क्या हुआ, स्केलिंग इज इक्वल टू के डॉट प्रोड के डॉट कास्ट के डॉट शेप एक्टिवेशन फ्लोट 32। अब इसमें जो है ये इसका अब जो स्केलिंग कर रहा है कुछ, ये फंक्शंस देखने पड़ेंगे। अब ये फंक्शंस क्या हैं, कास्ट क्या करता है, प्रोड क्या करता है, ये अब जो है थोड़ा सा डिटेल देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद क्या कर रहा है कि एड्स द L2 norm of the features of the layer of through the loss you avoid border artifact by only involving the non border pixel in the loss। तो आपके पास यहाँ पे जो एक्टिवेशंस हैं, ये जो एक्टिवेशंस आ रही हैं इसमें आपने क्या किया कि जो बॉर्डर हैं वो ओमिट कर दी हैं। तो ये जो है ये बॉर्डर ओमिट हो गए हैं, यानी कि आपका सेकंड एलिमेंट से सेकंड लास्ट एलिमेंट तक, सेकंड एलिमेंट से सेकंड लास्ट एलिमेंट तक इस तरीके से। तो आपका ये बॉर्डर ओमिशन हो गई, यानी कि बॉर्डर आपने ओमिट कर दिए हैं, आपने बीच में सेंटर कर रहे हैं उसको, बिकॉज आप जो है अपना जो फीचर्स हैं वो उनको सेंटर के ऊपर लाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट यू कैन सेट अप ग्रेडियंट एसेंट प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे जो है एक तो यहाँ पे क्या किया, एक तो हमने स्केलिंग मतलब उसकी स्केलिंग कैसे होगी, ठीक है। स्केलिंग जो है हमने उस कोफिशिएंट से ली के उसको हमने कितना वेटेज दी है हर लेयर को, ठीक है। दूसरा, हर लेयर हर लेयर का जो हमने ये लेयर्स दी हैं ये वाली, इन लेयर्स का यानी कि एक तो क्या स्केलिंग में कितना उसका वो होगा टेक पार्ट करेगी, और लॉस में कितना टेक पार्ट करेगी। तो वो लॉस जो है इस तरह कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। उसमें जो है लॉस इज प्लस इज इक्वल टू, इनिशियली लॉस 0 था, लॉस प्लस इज इक्वल टू कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय के डॉट सम के डॉट स्क्वायर एक्टिवेशंस। तो उसकी एक्टिवेशंस को हमने सम, सारी एक्टिवेशंस को सम कर दिया उस लेयर की। जैसे हमने अभी पढ़ा है ना कि इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी फिल्टर हैं और जितने भी एक्टिवेशंस हैं, ठीक है, उस लेयर के ऊपर, तो उस सब को हमने सम करके लाना होता है, ठीक है। जबकि वेयर एज आप जब कन्वोल्यूशन में करते थे, कन्वोल्यूशन 2D के अंदर, उसके अंदर सिर्फ हम ना किसी पर्टिकुलर फिल्टर की एक्टिवेशन को हम लाते थे, क्योंकि वो एक फीचर को टारगेट करता था। लेकिन इसके अंदर हम लेयर की सारी एक्टिवेशंस को सम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसको उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसको फिर हम लॉस में ऐड करते चले जा रहे हैं, तो इससे जो है वो लॉस बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट यू कैन सेट अप द ग्रेडियंट एसेंट प्रोसेस। अच्छा, दिस टेंसर होल्ड्स द ग्रेडियंट इमेज द ड्रीम। तो आपके पास जो है यहाँ पे इनपुट आएगी, मॉडल डॉट इनपुट, जब हम इनपुट देंगे एक पिक्चर देंगे इनपुट के लिए, और के डॉट ग्रेडियंट लॉस के डॉट ग्रेडियंट्स लॉस ड्रीम 0। तो यहाँ पे अब हमारे पास कंप्यूट्स द ग्रेडियंट्स ऑफ द ड्रीम विद रिगार्ड टू द लॉस। ग्रेडियंट को डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद आउटपुट इज इक्वल टू लॉस ग्रेडियंट्स। आपके पास लॉस आया, और लॉस कहाँ आया, ये प्लस ग्रेडियंट्स, फेच लॉस एंड ग्रेडियंट के डॉट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, ड्रीम आउटपुट्स,
setups a keras function to retrieve the value of the loss and gradients given an input image. तो ये वाला फंक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, k डॉट फंक्शन। इसको रन करते हैं। layer contributions, अब्दुल्ला भाई, ये यहाँ पर हमने L2 नॉर्मलाइज, L2 नॉर्म क्यों यूज किया, L1 क्यों नहीं किया? चाहिए क्या आ रहा है जी, tf dot variable is not supported, use variable dot assign underscore add value to modify the variable, or out is equal to variable plus value if you need to get a new output tensor. So